Hi friends, welcome on my YouTube channel Hub of Knowledge Mac. Read smart, become smart. So friends, today I am going to teach you regarding risk assessment. Means today I am going to teach you what is risk assessment, how to identify risk in organization and risk assessment table in Excel. This is the most important topic, so friends please be continue this video till end. The topics are covered during this session. First one is what is risk, second one what is risk management, third one steps of risk management process, fourth one risk assessment criteria, last one how to make risk assessment table. Friends, this is our training module template. These all trainings are provides with correlated topics. Friends, correlated topics means the technical topics that are not mentioned in template but must be teach along with main training topics as mentioned in template. We are teaching our participant theoretical as well as practical in Excel, PowerPoint, Word, etc. with perfect knowledge. Friends, job assurance is 100% after completion of the training course. If you need technical training, please contact on the number given in slide. First, let you understand what is risk. Risk is defined as effect of uncertainty on expected result, or risk is defined as possibilities of bad happening. मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोसेस में कार्य करते समय जो भी अनावश्यक घटनाएं घटित होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के क्यूएमएस को और एम्प्लॉयज़ को इम्पैक्ट करें उन्हें हम रिस्क कहते हैं. Now let's understand what is risk management. Risk management is a method where you identify what risks are present in your process and decide what you will do about them. Risk management manages the risk until they are eliminated. This risk management is a cyclical process in which a company will identify what risk exists and what action to be taken for control or prevent these risks. फ्रेंड्स, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में अनावश्यक सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करती है और उनकी रोकथाम के लिए एडवांस में एक्शन लेती है. रिस्क मैनेजमेंट कंटिन्यूअली रिस्क को प्रोसेस में आइडेंटिफाई करती है और उनकी घटित होने पर रोकथाम लगाती है ताकि वो प्रोसेस में कार्य करते समय वो रिस्क घटित ना हो. 4 स्टेप रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इज बेस्ड ऑन 4 क्रिटिकल स्टेप्स. फर्स्ट वन इज define how the risk will be addressed and treated. Friends, according to this step, organization have to make procedure for addressing risk and how they treated. Roles and responsibilities of concerned employees are defined in the procedure. Second step is identify the risk. According to this step, all possible risks are identified in organization. Like possible risks have to be identified related to quality, production, purchase, maintenance, HR, etc. फ्रेंड्स, इनसे रिलेटेड क्या क्या रिस्क हो सकते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा. सो बी कंटिन्यू. द थर्ड वन मोस्ट इम्पोर्टेंट step related to risk management is evaluate how significant the risk. According to this step, we have to prioritize the risk for taking action and to prevent the occurrence. The risk is prioritized through severity and occurrence, means
वो रिस्क कितनी डेंजर है और कितनी घटित होने की उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि ये रिस्क माइनर है, मेजर है, प्रोबेबल है और कैटास्ट्रोफिक है। इसका टेबल मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। नाउ लेट्स मूव फोर्थ स्टेप, आइडेंटिफाई कंट्रोल्स एंड अदर ऑप्शंस टू डिक्रीज रिस्क। According to this step, we have to make risk assessment criteria through which we prioritize the risk for taking action to prevent occurrence during process. To make risk-based thinking work for your organization, you will want to make your risk controls match your risk significance. So after determining which risks are significant, what do you do, and you will want to determine what controls to put in place for each risk. But how do you do this? The secret is to use the risk significant to decide what level of control is needed. फ्रेंड्स, इसका मतलब यही है, जो भी हम रिस्क असेसमेंट का क्राइटेरिया तैयार करेंगे उसी के बेस पे हम रिस्क को सिग्निफाइज करेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली हम एक्शन तैयार करेंगे ताकि वो प्रोसेस के दौरान घटित ना हो। नाउ लेट्स मूव हाउ टू मेक रिस्क असेसमेंट क्राइटेरिया। दिस इज द रिस्क असेसमेंट क्राइटेरिया टेबल। हेयर severity is categorized in 5 factors: negligible, minor, marginal, critical, catastrophic. And probability means occurrence. Probability further divided in 5 factors: frequent, probable, occasional, remote, inoperable. अगर किसी रिस्क के या किसी घटना के घटित होने की क्षमता ज़्यादा है तो हम उसको मैक्सिमम 5 नंबर देंगे। अगर प्रोबेबल है तो 4 देंगे। अगर ओकेशनल है मतलब कभी कभार होती है तो 3 देंगे। रिमोट है मतलब बहुत ही कम होती है तो उसे 2 देंगे। इनऑपरेबल मीन्स वो है ही नहीं, कभी घटती ही नहीं होती है, पूरी तरह से प्रिवेंट हो चुकी है तो वहाँ पे हम 1 देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम नेग्लिजिबल है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 5 तब भी हमको एक्शन लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम माइनर है और इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो हम उसको नंबर देंगे 10। ये फ्रेंड्स ये क्यूमुलेटिवली ऐड होता चला जाएगा, जैसे 5, 10, 15, 20, 25। अगर कोई प्रॉब्लम की सिवियरिटी मार्जिनल है, मार्जिनल को हमने नंबर दे रखा है 3 और फ्रीक्वेंसी है उसकी 5 तो उसका सिवियरिटी कितनी हो जाएगी 15। जैसे यहाँ पर माइनर की 2 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 5 तो कितना हो गया 10। ऐसे ही किसी प्रॉब्लम की सिवियरिटी क्रिटिकल है और क्रिटिकल को जो मार्क्स दे रखे हैं वो 4 दे रखे हैं तो 4 × 5 20। कैटास्ट्रोफिक है कोई रिस्क मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, उस केस में 5 × 5 25। सिमिलरली अगर किसी प्रॉब्लम की सिवियरिटी नेग्लिजिबल है, फ्रीक्वेंसी 4 है, उसकी प्रोबेबिलिटी देन 4 1 द 4, यहाँ पे 4 आ जाएगी इसकी रेटिंग। अगर कोई प्रॉब्लम की सिवियरिटी माइनर है, रेटिंग यहाँ पे 2 है, उसकी प्रोबेबिलिटी 4 है तो 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से मार्जिनल है, मार्जिनल की 3 है, प्रोबेबिलिटी 4 12, क्रिटिकल की 16 एंड कैटास्ट्रोफिक की 20। इसी प्रकार अगर किसी प्रॉब्लम की सिवियरिटी क्रिटिकल है तो क्रिटिकल में उसकी मार्क्स दे रखा है 4 और उसकी फ्रीक्वेंसी ओकेजनल है, इसमें 3 मार्क्स दे रखा है तो 4 × 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा इसकी जो रेटिंग है। कैटास्ट्रोफिक है तो उसकी रेटिंग 15 आ जाएगी। ऐसे ही किसी प्रॉब्लम की सिवियरिटी नेग्लिजिबल है और वो उसकी फ्रीक्वेंसी है रिमोट, उसके लिए 2 नंबर दे रखे हैं यहाँ पे 2 1 1 is 2। तो यहाँ पे 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। ऐसे ही किसी प्रॉब्लम की जो सिवियरिटी है वो माइनर है और फ्रीक्वेंसी उसकी रिमोट है मीन्स 2 है, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ऐसी मार्जिनल की 3 है तो यहाँ 6 आ जाएगा। क्रिटिकल की 4 है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। ऐसे ही कैटास्ट्रोफिक है, कैटास्ट्रोफिक की 5 है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। सिमिलरली अगर किसी प्रॉब्लम की सिवियरिटी नेग्लिजिबल है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 1 मीन्स इनऑपरेबल कि वो पूरी तरह से प्रिवेंट है, वो घटित नहीं हो सकती, तो उसका सिमिलरली जो नंबर हमने सिवियरिटी को दे रखा है वो एज इट इज़ आ जाएगा 1 2
मार्जिनल के लिए 3, क्रिटिकल के लिए 4 एंड कैटास्ट्रोफिक के लिए 5. So friends, this is the risk assessment criteria. On that base, we have to signify or prioritize the risk for taking action to prevent during process. Now let understand risk level. ने भी मैंने प्रॉब्लम को कैटेगराइज किया है. इन प्रॉब्लम की सिवियरिटी का जो जितनी भी रैंक आई है उस रैंक को हमने लेवल में डिवाइड कर दिया है. मीन्स अगर किसी प्रॉब्लम की सिवियरिटी में 15 से 25 तक की मार्किंग आती है तो वो अनअक्सेप्टेबल रहेगी वो रिस्क. हैव टू एलिमिनेट और प्रिवेंट बाय टेकिंग एक्शन. अगर किसी रिस्क का लेवल 6 से 12 के बीच है देन वो मीडियम रिस्क है. उसमें हमको कुछ डिटेक्शन या कुछ कंट्रोल ऐसा लगाना पड़ेगा ताकि ऑपरेटर या एम्प्लॉयज़ खुद ही उसको कंट्रोल कर सके. जैसे 6 से 12 के बीच है तो 8 to 12, 8 में माइनर भी आ रहा है और मार्जिनल भी आ रहा है. तो इस रैंक की जो भी रिस्क होंगी उनको ऑपरेटर वगैरह को ट्रेनिंग वगैरह दे दी जाएगी ताकि वो सेल्फ प्रिवेंट हो सकें. 1 to 5 के बीच में लो रिस्क मतलब अगर कोई प्रॉब्लम घटित हो जाती है तो उसकी सिवियरिटी इतनी नहीं होती जितना कि उसका कोई इम्पैक्ट पड़े, क्वालिटी के कंपनी की क्वालिटी मैनेजमेंट पे कोई इम्पैक्ट पड़े या किसी एम्प्लॉय पे इम्पैक्ट पड़े. तो दिस इज द टॉलरेबल रिस्क. इसको हम टॉलरेट कर सकते हैं ड्यूरिंग दी. नाउ लेट्स मूव. व्हाट काइंड ऑफ रिस्क अराइज फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सो ये रिस्क को हमने 3 कैटेगरी में आइडेंटिफाई किया हुआ है, लो, हाई एंड मीडियम. हेयर एडिशनल कंट्रोल प्लान. अगर हमने कोई अलग से कोई एडिशनल कंट्रोल करना है उस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए तो यहाँ पे हम एक्शन लिख देंगे. फिर दोबारा से रिजल्टेंट सिवियरिटी आफ्टर एडिशनल कंट्रोल. दोबारा एक्शन लेने के बाद हमने रिस्क कैलकुलेट करेंगे कि वो उस रिस्क पे क्या फ़र्क पड़ा है, वो हाई टू मीडियम हुई है या मीडियम टू लो हुई है. तो इससे दोबारा एक्शन लेने के बाद सिवियरिटी उसकी चेंज हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी भी चेंज हो जाएगी. अगर सिवियरिटी चेंज नहीं होती है तो प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली चेंज हो जाएगी और उसी के बेस पे रिस्क का जो कैटेगराइजेशन है लो, हाई और मीडियम में फॉल कर जाएगी वो जो रिस्क है. तो ये प्रोसेस डिस्क्रिप्शन है परचेजिंग, सप्लायर सिलेक्शन, इवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन. ये सप्लायर सिलेक्शन और परचेज डिपार्टमेंट की ये रिस्क हैं कि क्या क्या रिस्क हो सकती हैं इन परचेज डिपार्टमेंट में और उससे रिलेटेड क्या क्या कंट्रोल ले रखी हैं और कंट्रोल करने के बाद उसकी सिवियरिटी, प्रोबेबिलिटी और रिस्क किस कैटेगरी में आ रही है. तो पहला है आपका डिले इन डिलीवरी. परचेज में डिलीवरीज का डिले होना एक फ्रिक्वेंट रिस्क है जिसके लिए हम क्या करते हैं, लीड टाइम कैलकुलेशन, सप्लायर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग. डिलीवरी के बेस पर सप्लायर का परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कार्ड सर्कुलेट करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं. और लीड टाइम उसको हम पहले से ही दे के रखते हैं कि भाई कितने दिन में हमको ये डिलीवरी चाहिए. तो इस रिस्क को हमने कैटेगराइज कर रखा है. सिवियरिटी दे रखी है 3, प्रोबेबिलिटी दे रखी है 3 एंड रिस्क दे रखा है यहाँ पे 9. तो 9 किस कैटेगरी में आता है, 9 आता है आपका 6 to 12 यानी मीडियम कैटेगरी में. तो ये रिस्क किस में आ जाएगी, मीडियम कैटेगरी में. ऐसे ही इनकमिंग मटेरियल क्वालिटी इश्यूज, इनकमिंग इंस्पेक्शन. अगर इनकमिंग मटेरियल में कोई क्वालिटी इशू आता है तो हम उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, इनकमिंग इंस्पेक्शन में. आरआई वाले इसको चेक करके डिसीजन लेते हैं. इसकी सिवियरिटी दे रखी है 3, प्रोबेबिलिटी दे रखी है 2 एंड रिस्क दे रखा है इसका 6. तो ये भी मीडियम कैटेगरी में आती है ये रिस्क. ऐसी रॉन्ग परचेजिंग स्पेसिफिकेशन कम्युनिकेशन, ये भी एक रिस्क है. 3 टायर अप्रूवल ऑफ पीओ फॉर एडिक्वेसी बिफोर इट इज़ रिलीज, ये इसका कंट्रोल है. इसकी सिवियरिटी दे रखी है 3, प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1 एंड रिस्क दे रखी है इसकी 3, यानी ये लो है, एक्सेप्टेड कंडीशन में है. परचेजिंग कॉस्ट इज मोर, अगर परचेज कॉस्ट ज़्यादा होती है तो उसके लिए क्या कंट्रोल है, कॉस्ट कंपैरिजन विद अदर सप्लायर बिफोर प्लेसिंग पीओ. हम दूसरे सप्लायर के साथ में कॉस्ट की कंपैरिजन कर सकते हैं पीओ रिलीज करने से पहले. सिवियरिटी इसकी 3 है, प्रोबेबिलिटी 2 है, रिस्क इसकी 6 है. तो मीन्स ये मीडियम कंडीशन में है. मोनोपोली सप्लायर, अगर सप्लायर अपनी मोनोपोली चलाता है. इन्वेंट्री मैनेजमेंट,
तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा ताकि सप्लायर अपनी मोनोपोली ना चला सके। सिवेरिटी इसमें दे रखी है 2, प्रोबेबिलिटी दे रखी है 2 एंड रिस्क दे रखा है इसमें 4, तो ये लो कैटेगरी में आता है। ऐसे ही नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा कस्टमर रिलेटेड प्रोसेस, मीन्स क्वालिटी से रिलेटेड भी इसमें आ सकता है कि क्वालिटी से रिलेटेड कस्टमर की क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। फर्स्ट इशू है मीन्स फर्स्ट रिस्क है नॉट मीटिंग द शेड्यूल एज पर द कस्टमर शेड्यूल। अगर कस्टमर ने जो शेड्यूल दिया है उसके अकॉर्डिंगली शेड्यूल मीट नहीं हो रहा है तो ये क्वालिटी वाले की भी जिम्मेवारी है और प्रोडक्शन वाले की भी है। तो क्या कंट्रोल करना है, डिस्पैच स्टेटस मॉनिटरिंग, आपको टाइम टू टाइम डिस्पैच का जो आपका स्टॉक है उसको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। सिवियरिटी दे रखी है 2, प्रोबेबिलिटी है इसमें 2 एंड रिस्क है 4, तो ये किस में है आपका, किस कैटेगरी में आ रहा है, लो कैटेगरी में। मीन्स ये एक्सेप्टेड है बट थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सेकंड, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नॉट मीट, कस्टमर की जो स्पेसिफिकेशन है अगर वो मीट नहीं हो रही है प्रोडक्ट की क्वालिटी में तो उसके लिए क्या करते हैं, कंट्रोल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू चेकलिस्ट, इसकी सेवेरिटी दे रखी है 4, प्रोबेबिलिटी 2 है और रिस्क है इसका 8, तो मीन्स ये मीडियम कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, कस्टमर क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स आर नॉट मीट, ये क्वालिटी से रिलेटेड है। इंस्पेक्शन ऑफ द लॉट बिफोर डिस्पैच, आपको पीडीआई करना पड़ेगा। सिवियरिटी यहाँ पे दे रखी है 4, प्रोबेबिलिटी है 2 एंड रिस्क दे रखा है 8, मीन्स किस कैटेगरी में आ जाएगा, मीडियम कैटेगरी में। मीडियम कैटेगरी में मीन्स क्योंकि ये मीडियम कैटेगरी में इसीलिए हमने सारे रिस्क ले रखे हैं क्योंकि ये रिस्क ईजिली कंट्रोल हो सकते हैं, बस थोड़ा सा हमको अलर्ट होने की ज़रूरत रहती है। सिमिलरली हम अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में दे रखा है ह्यूमन रिसोर्स के लिए एचआर से रिलेटेड क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए स्किल ऑफ एम्प्लॉय नॉट एज पर कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड, मतलब जिस स्किल का बंदा चाहिए उस स्किल से रिलेटेड उस बंदे की कॉम्पिटेंसी मीट नहीं कर रही है तो उसके लिए एचआर वाले क्या करेंगे, स्किल लेवल मॉनिटरिंग कंडक्टिंग ट्रेनिंग, मतलब उसकी स्किल की लेवल का मॉनिटरिंग करेंगे, स्किल एवेल्यूएशन करेंगे और उसको ट्रेनिंग देंगे अगर किसी टॉपिक पे उसको नॉलेज कम है तो। सिवियरिटी दे रखी है 3, प्रोबेबिलिटी दे रखी है 4, रिस्क दे रखा है 12। एडिशनल कंट्रोल इसमें दे रखा है ट्रेनिंग विल बी इम्पार्टेड, मतलब ट्रेनिंग उसको दी जाएगी। अब इसने एडिशनल कंट्रोल ले लिया है तो यहाँ पर क्या किया है, सिवियरिटी उसकी चेंज नहीं हुई है बट प्रोबेबिलिटी उसकी चेंज हो गई है, 4 से 2 हो गई है। तो फाइनली रिस्क क्या हो गया 6, मतलब ये आ गया आपका मीडियम कैटेगरी में। पहले भी मीडियम में था बट ये और भी इसकी जो है रिस्क कम हो गई। सेकंड है कॉम्पिटेंसी ऑफ न्यू जॉइनी नॉट एज पर रिक्वायरमेंट, जो न्यू जॉइनीज आए हैं उनकी कॉम्पिटेंसी आपकी जेडी को मीट नहीं कर रही है जो जेडी की रिक्वायरमेंट थी। तो इंटरव्यू इन कंडक्शन ट्रेनिंग, उसका इंटरव्यू कराया जाएगा और इंडक्शन ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इंडक्शन ट्रेनिंग के समय पर उसको जो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं या स्किल्स रिलेटेड जो टॉपिक हैं ट्रेनिंग के उन पर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। सिवियरिटी दे रखी है 3, प्रोबेबिलिटी दे रखी है 3 एंड रिस्क दे रखा है 9। इसमें भी उसने एडिशनल कंट्रोल लगा रखा है ट्रेनिंग विल बी इम्पार्टेड, तो सिवियरिटी सेम रही है, प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई है, 3 से 2 हो गई और रिस्क हो गया यहाँ पे 6। नेक्स्ट, ट्रेनिंग इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड एज पर प्लान्ड, उसमें भी ऐसे ही दिखा रखा है उसने कि ट्रेनिंग अगर प्लान के हिसाब से नहीं एग्जीक्यूट होती है तो ट्रेनिंग अधेरेंस मॉनिटरिंग ऑन ए मंथली बेसिस, उनको मंथली बेसिस पर ट्रेनिंग का जो कैलेंडर है उसे रिव्यू करना पड़ेगा। सिवियरिटी दे रखी है 3, प्रोबेबिलिटी है 2 और रिस्क है 6। ट्रेनिंग इज़ नॉट इफेक्टिव, अगर ट्रेनिंग दे रखी है और वो इफेक्टिव नहीं है तो ट्रेनिंग फीडबैक फॉर्म एचआर वाले लेते हैं, ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग करते हैं। फिर उसका जो है हमने सिवियरिटी दे रखी है 3, प्रोबेबिलिटी है 4 और रिस्क है यहाँ पे 12। इन्होंने एडिशनल कंट्रोल लगा रखा है, रीट्रेनिंग देते हैं और उसका दोबारा से इफेक्टिवनेस चेक करते हैं। सिवियरिटी सेम रहती है, प्रोबेबिलिटी 2 एंड रिस्क 6। ऐसे ही मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए है, पहला इसमें रिस्क आ सकता है ब्रेक डाउन ऑफ द मशीन, इससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन एनालिसिस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। सिवियरिटी 2, प्रोबेबिलिटी 2 एंड रिस्क 4, यानी लो एक्सेप्टेड कंडीशन में है, लो कैटेगरी में है ये।
PM प्लान नॉट अधेयर, मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान नॉट अधेयर, मॉनिटरिंग ऑफ PM प्लान ऑन मंथली बेसिस। यहाँ पे कैटेगराइज कर रखा है सिवियरिटी, प्रोबेबिलिटी, रिस्क। एंड प्रोडक्शन नॉट अचीव ड्यू टू ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन की वजह से प्रोडक्शन का शेड्यूल है वो मीट नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, स्टॉक मेंटेन ऑफ फॉर क्रिटिकल स्पेयर्स, जो क्रिटिकल स्पेयर्स पार्ट्स हैं उनको आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा मेंटेनेंस वालों को, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना पड़ेगा। सिवियरिटी दे रखी है 2, प्रोबेबिलिटी है 3 और रिस्क है 6। नेक्स्ट है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल स्पेयर पार्ट्स, अगर मेंटेनेंस वाले के पास क्रिटिकल पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो क्या करेगा, क्रिटिकल स्पेयर पार्ट्स मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग, क्रिटिकल स्पेयर पार्ट्स की वो मेंटेनेंस करेगा और उसका एक मॉनिटरिंग करेगा, मतलब वही रजिस्टर में मॉनिटरिंग करेगा कि उसके पास कितना कितना स्टॉक है और कितना स्टॉक उसका ख़त्म हो गया है। तो सिवियरिटी है 2, प्रोबेबिलिटी 3, रिस्क है 6। ऐसे ही नेक्स्ट रिस्क ऑफ ह्यूमन इंजरी ड्यू टू यूज़ ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, डेली चेक शीट, डेली मशीन चेक शीट लगाते हैं या मटेरियल हैंडलिंग की चेक शीट लगाते हैं, वो उसका कंट्रोल हो गया। सिवियरिटी है 4, प्रोबेबिलिटी है 2, रिस्क है 8। इसने एडिशनल कंट्रोल यहाँ दे रखा है टेस्टिंग ऑफ इक्विपमेंट, तो सिवियरिटी तो सेम रहती है, प्रोबेबिलिटी 1 हो गई और रिस्क हो गया यहाँ पे 4। So friends, this is the risk assessment table. If having any clarification, you can call me the number given in slide. Thank you.